Hello everyone. Now let's see some more examples in the classification of carbohydrates and some important functions of carbohydrates in our body. कार्बोहाइड्रेट्स में हमने अब तक देखा कि कैसे कार्बोहाइड्रेट जनरल फॉर्मूला, उनके क्लासेस, अलग अलग क्लासिफिकेशन, शुगर्स, नॉन शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, सिंपल शुगर्स, कॉम्प्लेक्स शुगर्स. In simple sugars we have seen monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, and in complex sugars we have seen polysaccharides on the basis of hydrolysis. We have also seen the examples of aldoses, ketoses, aldotriose, tetrose, pentose, ketotriose, tetrose, pentose, etc. In monosaccharides we have also seen the examples of disaccharides, that is your sucrose, lactose and maltose. Now plus we have also added some examples of homopolysaccharides in polysaccharides, that is cellulose and starch, along with the linkages, glycosidic linkage present in it. Just try to remember the formation of glycosidic bond. मैंने आपको बताया था the two sugar molecules will join, they will lose water, that is dehydration will occur and a bond is formed, it is known as glycosidic bond. So glycosidic bond is formed by dehydration. Write down this line somewhere. Glycosidic bond is formed by dehydration, that is removal of water. Okay, now let's see some more examples of your homopolysaccharides. The example after cellulose, starch. Next example of your homopolysaccharides is the glycogen. Glycogen is actually your animal starch. इसका दूसरा नाम रखा है animal starch. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है क्या वो starch है, but it is present in animals. Remember starch, अगर आपको याद आ रहा देखो, starch is made up of two components, amylose and amylopectin. Amylose is water soluble, amylopectin is water insoluble component. It is branched, amylose is unbranched. Okay, starch is the stored food material in plants. Remember the function of starch. Starch कहाँ पे present रहता? It is stored. फ्रूट्स में रहेगा, फ्लावर्स में रहेगा, अलग अलग जहाँ जहाँ पे अपने को स्टोरेज करने का रहेगा, रूट्स में, कैरेट वगैरह जो आप खाते, सो सीड्स में, सो दे आर स्टोर्ड. इट इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स. तो जैसे अपनी बॉडी में फैट स्टोर होता, फैट जगह जगह पे स्टोर हुआ रहता अपनी बॉडी में, सो फैट इज द स्टोर्ड मटेरियल एंड रिजर्व फूड मटेरियल. व्हेनेवर देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी, सो योर बॉडी विल रिट्राइव द एनर्जी फ्रॉम दिस स्टोर्ड फैट. तो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करते, उसी तरीके से फैट के साथ साथ हमारे लीवर और मसल्स में, लीवर एंड मसल्स, यहाँ पर आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे आपको ग्लाइकोजन स्टोर हुआ मिलेगा. ग्लाइकोजन स्टोर्ड देयर, लीवर एंड मसल्स. लीवर में मेटाबॉलिज्म होता, मसल्स अपने वर्क करते, फंक्शन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. So when they do function, they do perform their normal function. At that time they need energy, and when you are not having sufficient nutrition, sufficient food intake, so at that time the liver and muscles will utilize these stored, they will utilize this stored glycogen, they will break down it into glucose and they will take up the energy from that glucose. Okay, so actually glycogen is also made up of glucose. ये भी ग्लूकोज से बना है. It is nothing but actually your amylopectin. आपको डायग्राम भी आ रहे हैं, आप देख रहे हो, अमाइलोपेक्टिन जैसा ही है. अमाइलोपेक्टिन में क्या रहता है, ग्लूकोज रहते, बट वो ब्रांच्ड रहते, सो शॉर्ट ब्रांचेस प्रेजेंट रहती यहाँ पे, ग्लूकोज की शॉर्ट ब्रांचेस. ओके, दिस इज योर अमाइलोपेक्टिन. तो नॉर्मली कैसा स्ट्रक्चर दिखता है फिर इसका, अगर आपको ड्रॉ सिंपली करने का है, सो दिस इज द ब्रांचेस, दीज आर द ब्रांचेस, दिस इज द स्ट्रक्चर, अ वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर, ऐसे ब्रांचेस रहेंगे. सो ये ब्रांच मतलब क्या होगी, ग्लूकोज की छोटी चेन हो गई, ये एक ब्रांच. ओके, सो इसी तरीके से इधर एक ग्लूकोज की ब्रांच रहेगी, फिर इधर ग्लूकोज की ब्रांच रहेगी. ओके, तो ये ब्रांचेस रह के इस तरीके से एक आपका ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल तैयार है. ओके, सो वापस यहाँ पर आपको लिंकेज क्या दिखाई देगी, नॉर्मल लिंकेज रहती है आपकी 1,4 लिंकेज, और ये ब्रांचिंग जहाँ पे होती है वहां पे 1,6 लिंकेज. कल की अपनी जो अमाइलोपेक्टिन वाली लिंकेज थी, सो बोथ द लिंकेजेस आर प्रेजेंट हियर. 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज एंड ब्रांचिंग कैन बी सीन इन योर ग्लाइकोजन. It is therefore known as, it is stored material in animals, hence it is also called animal starch. It is the
polymer of glucose, means glucose is monomer and it repeats itself, glucose is the repeating unit and it forms the polymer glycogen. ओके, सो ग्लाइकोजन हो गया, फंक्शन समझ में आया उसका. उसके बाद है आपका नेक्स्ट मटेरियल इज योर काइटिन. काइटिन, सो काइटिन इज द abundantly found material in the exoskeleton of arthropods and fungal cell wall. ये लोकेशन आपको अच्छे से याद रखने की है. काइटिन कहाँ पे मिलता? सो काइटिन इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स. आर्थ्रोपॉड्स मींस योर ऑल कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स. ओके, सो फोटो तो आ रही है आपको. एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन द फंगल सेल वॉल. फंगस की सेल वॉल हमने ऑलरेडी सेल वॉल में देखा था, सेल चैप्टर में. सेल वॉल इन फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन. एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैव गिवन दिस एग्जांपल. सो काइटिन इज अ होमोपॉलीसैकेराइड made up found in exoskeleton of arthropods and the fungal cell wall abundantly. It is the homopolymer of an acetyl glucosamine or glucosamine. कैसे बने वाला है ये? ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. सेल्यूलोज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज. स्टार्च इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज. मतलब इन और ग्लाइकोजन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज. इन तीनों का मोनोमर कौन है? ग्लूकोज. और ग्लूकोज के ये पॉलीमर्स हो गए. ओके, तो वैसे काइटिन भी किसी एक चीज से बने वाला होगा. तो काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड, मींस इट इज अ पॉलीमर मॉलिक्यूल. इट इज मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन. एमसीक्यू में पूछेंगे. इसमें एन मतलब नाइट्रोजन भी है. आप फोटो में देखो, आपको एन नाइट्रोजन वगैरह कलर्ड पार्ट बता रहा हूं मैं. और ग्लूकोज एमाइन मतलब है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसमें, लेकिन अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप भी दिख रहा होगा. आप किसी एक रिंग को पकड़ के बात करो, आपको दिखाई देगा यहाँ पे कलर्ड. उसमें ग्लूकोज भी है. अमाइन मतलब NH2, आपको अमाइनो ग्रुप भी दिखेगा, NH वगैरह, और एसिटिल ग्रुप भी है. सो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बड़ा सा शुगर बनेगा विच इज कंटेनिंग नाइट्रोजन. सो दिस इज नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, एसिटिल ग्रुप इज प्रेजेंट. इट इज कॉल्ड एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, NAG शॉर्टकट में, NAG, N-acetyl glucosamine. So chitin is the homopolymer of N-acetyl glucosamine. ये मॉलिक्यूल इसमें रिपीट. इसमें भी आपको अलग अलग लिंकेजेस दिखाई देंगी. आपको एज यू कैन सी इन काइटिन देयर इज 1,4 लिंकेज. बीटा 1,4 लिंकेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी. सो काइटिन में कौन सी लिंकेज है? 1,4 लिंकेज. ग्लाइकोजन में कौन सी है? 1,4 भी है और 1,6 भी प्रेजेंट है. इसमें 1,4 linkage in between the two NAG molecules. Okay, significance of chitin, it is the structural component in the exoskeleton of your arthropods and fungal cell. अब काइटिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. काइटिन जल्दी डिसॉल्व नहीं होता, जल्दी उसका ब्रेकडाउन नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल रहता. इसीलिए क्या होता है, देखो जब भी इंसेक्ट्स मर जाते, कॉकरोच वगैरह अपने मरने के बाद अगर आपने देखे होंगे, सो कॉकरोच की जनरली डेड उनके आउटर एक्सोस्केलेटन ही पड़ा रहता है, अंदर का सॉफ्ट मटेरियल पूरा गायब हो जाता है. लेकिन कॉकरोच के शेल्स, उनके जो पंख वगैरह रहेंगे, विंग्स वगैरह, वो वैसे ही सड़ते नहीं, वो जल्दी खराब नहीं होते, वो पड़े रहते हैं. उसी तरीके से फंगस भी ज्यादातर क्या होते हैं, वैसे सूखे बाद वैसे पड़े रहते हैं, जल्दी उनका डिस्ट्रक्शन, डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता. बिकॉज काइटिन इज अ स्ट्रॉन्ग शुगर, इट कैन नॉट बी इजीली डिग्रेडेड. उसके डिग्रेडेशन के आपको काइटिनेज वगैरह एंजाइम्स लगते, बट इजीली डिग्रेड होने वाली शुगर ये नहीं रहती. देयरफॉर द फंगल cell walls, fungal remaining parts or the exoskeletons of arthropods, they do not degrade easily, they remain for a longer period as it is. Okay, so chitin के बारे में एक बात बता रहा हूं. अगला आपका शुगर है इन्यूलिन. अगला होमोपॉलीमर है इन्यूलिन. इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. इन्यूलिन इज द होमोपॉलीमर ऑफ fructose, in which fructose subunits, आपके सामने फोटो आ रही है, fructose subunits are joined by 1-2 linkages, बीटा 1-2 लिंकेज वगैरह आपको फोटो में दिख रहा है. एक फ्रुक्टोज, दो फ्रुक्टोज, ये रिंग स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ. n टाइम्स फ्रुक्टोज यहाँ पे रिपीट हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्यूलिन इज द होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. Insulin is an hormone, it is a protein. Insulin is different, it controls your blood sugar concentration, but it is inulin, it is a homopolysaccharide sugar made up of repeated units of fructose. देखो ग्लूकोज से बने वाले 3 है,
सेल्यूलोज स्टार्च ग्लाइकोजन ये ग्लूकोज से बने वाला है। काइटिन किस चीज से बने वाला है? एन नाक से बने वाला है। नाक मतलब एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, NAG नाक, ऐसा याद रखो। ओके और इन्यूलिन इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज, रिपीटेड यूनिट्स ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का पॉलीमर है ये, फ्रुक्टोज का पॉलीमर, ये ग्लूकोज के पॉलीमर से, ये नाक का पॉलीमर है काइटिन, वैसे फ्रुक्टोज का पॉलीमर इन्यूलिन। इसका एक ही यूज है, दिस शुगर हैज इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT बोलते हैं उसको, किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं, किडनी में नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन किडनी, की किडनी में कितना ब्लड फिल्टर हो रहा और उससे कितना फिल्ट्रेट तैयार हो रहा, यूरिन नॉर्मल तैयार हो रहा क्या नहीं, ठीक से किडनी काम कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए इन्यूलिन टेस्ट करते। इन्यूलिन टैबलेट्स वगैरह रहते, वो टैबलेट्स वगैरह या फिर इंजेक्शन के थ्रू इन्यूलिन देते एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर वो उतना पूरा का पूरा क्लियर हो रहा तो फिर उसके ऊपर से कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस निकालते, उसके ऊपर से कुछ क्लिनिकल डायग्नोस करते। अगर उसमें कुछ कम ज्यादा निकल रहा या फिर किडनीज ठीक से उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे, मतलब तुम्हारे किडनीज में कुछ तो भी खराबी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायलिसिस में भी काम में आता। डायलिसिस में किडनी फंक्शन टेस्ट के टाइम पे इन्यूलिन इंजेक्ट करते। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चेकिंग आउट द किडनी फंक्शन टेस्ट। ओके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, जैसे क्रिएटिनाइन टेस्ट रहती क्लियरेंस के लिए, किडनी क्लियरेंस टेस्ट बोलते हैं उसको, क्रिएटिनाइन का अमाउंट चेक करते। वैसे ही इन्यूलिन इज ऑल्सो अ गोल्ड स्टैंडर्ड in checking the kidney function, normal kidney function. Okay, so it is made up of fructose। अपने काम का तो ये कैसे बने वाला है, उसमें कौन सी लिंकेज, आपको एक आइडिया ध्यान में आएगा क्या करना है। कोई भी चीज, कोई भी शुगर कैसे बने वाली है, उसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, अपने को इसका ही टेबल बनाना। मैंने ऑलरेडी आपको वही बोला था, बस उतना ही अपने काम की चीज है यहाँ, बाकी सिर्फ फंक्शन, उसका एक खादा कोई फंक्शन आपको याद है। सो दिस इज अबाउट योर इन्यूलिन। Now the homopolysaccharides, after homopolysaccharides these are your heteropolysaccharides, जिसमें आपका एक ही एग्जांपल है heteropolysaccharides। इसमें एक एग्जांपल है सबसे काम का हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड कुछ याद आ रहा है क्या किसी को? देखो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज इट इज प्रेजेंट इन द स्पर्म हेड, इन एक्रोसोम, लाइसोसोम में देखे थे हमने इन सेल चैप्टर। हाइल्यूरोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ओवम, ह्यूमन ओवम, जो वॉल रहती है ह्यूमन ओवम की, इट इज मेड अप ऑफ follicular cells and these cells are joined together by means of this acid, hyaluronic acid. Hyaluronic acid it is present in the corona radiata, outer जो लेयर रहती सेल की ओवम की, this is ovum, its outer layer is made up of cells that appear like sun। देखो वाला सूर्य के जैसे दिख रहे क्या? कोरोना ऑफ सन, नॉट कोरोना, कोविड वायरस नहीं बोल रहा मैं, कोरोना नहीं बोल रहा, हाँ लेकिन वो भी वैसे ही दिखता जैसे कि सन रेज निकल रही है। तो ओवम जो रहता है ह्यूमन ओवम, इट इज ह्यूमन फीमेल गैमेट, इसके आजू बाजू ऐसे कुछ सेल्स चिटके वाले रहते हैं जो सूर्य के जैसे, सन रेज के जैसे दिखाई देते। तो ये जो सेल्स है these are called follicular cells, these are glued together, they are joined together with the help of this hyaluronic acid, with the help of this hyaluronic acid, and this is an heteropolysaccharide. It is a heteropolysaccharide because it is made up of different units of sugars. Now your homework is to find out which units are present in this heteropolysaccharide। आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक कुछ तो काम होना चाहिए ना आपका, सब मैं बता दूंगा कैसे चलेगा। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल मैंने दिया आपको हाइल्यूरोनिक एसिड, लेकिन इसमें कौन से शुगर यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन सी लिंकेज प्रेजेंट रहती, क्योंकि इसमें यूनिट रहता और एक लिंकेज रहती, तो इधर भी कुछ ना कुछ शुगर्स रहेंगे और लिंकेज रहेंगी। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट पॉइंट, दिस इज योर होमवर्क। और जस्ट मैसेज मी योर आंसर, आप जैसे वीडियो देखेंगे आंसर मिल जाएगा, उसके बाद मुझे मैसेज करने का सर आंसर इज hyaluronic acid is made up of dash sugar units which are different, hence it is called heteropolysaccharide। अगर एक जैसे यूनिट से बने वाला रहा, repeated sub units are same, it is called homopolysaccharide, but when it yields different sub units on hydrolysis it is called heteropolysaccharide। So example is hyaluronic acid। Okay, this is about your heteropolysaccharide। एक आधा और एग्जांपल ढूंढो आप, अगर आपकी तरफ से ढूंढ सके तो, but hyaluronic acid is the best example। Okay, this is all about your
कार्बोहाइड्रेट्स, देयर टाइप्स, देयर एग्जांपल्स। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट खत्म होता है, चैप्टर बहुत छोटा है, आसान है, बस एग्जांपल्स और फैक्ट्स है कुछ इसके अंदर। इसमें एक और पॉइंट अपन देखने वाले, सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपके सामने फंक्शंस आ रहे हैं। सो फंक्शंस में सबसे पहले आपको जो दिख रहा है फंक्शन में आपको पॉइंट वाइज बोल रहा हूं, आपने जो देखे वही फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। Carbohydrates are the source of energy. They are your respiratory substrate. Your body will utilize energy, will take energy from glucose. तो glucose is the ultimate source of energy. Glucose का breakdown करके हमको ATP तैयार होती है. So they are the food source of energy. सबसे पहला source of energy. दूसरा, they form structural components in your body. For example, sugars, polysaccharides are present in plasma membrane. बाहर से अटैच रहते हैं. They are also present along with proteins to form glycoproteins. ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह, शुगर प्रोटीन वगैरह से जुड़ के बनाएंगे. सो दे विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सम स्ट्रक्चर्स इन योर बॉडी. ओके, जैसे कि राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए. राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए. राइबोज रहता ना डीएनए में. डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब उसमें कौन सी, अरे एमसीक्यू मिलेगा आपको, डीएनए आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है. सो विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए आरएनए? 5 कार्बन कंटेनिंग राइबोज शुगर इज प्रेजेंट. Okay, so it forms your DNA RNA, so it forms your structure. So sugars also form your structural components. Food source, energy source, your structural components. Then some sugars are protective in function. For example, they form your cell wall. Chitin forms the cell wall, cellulose forms the cell wall, so they are protective in function. Okay, again they are from structural components, they are providing you protection. They act as reserve food material. Reserve food material, for example, starch is reserve food material in plants and glycogen is reserve food material in animals. They act as reserve food material, and whenever there is starvation or need of energy, then you will break down the starch or glycogen and you will derive the energy from it. These are the 4 major functions: food source, structural component, providing protection, and providing reserve food material. They act as reserve food material. Okay, some polysaccharides they have many roles, but major 4 roles are this. इसके अलावा और कुछ फंक्शंस है जो आपके सामने आ रहे हैं, थ्योरेटिकल है, आप उसको कवर कर सकते हैं. इसके साथ ही कुछ फैक्चुअल डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा, कर रहा हूँ अभी आपके सामने फोटोज आ रही है. ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स है, आपको कुछ याद रखने हैं. रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जाम्पल, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जाम्पल. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. कुछ फंक्शंस है आपके सामने, कुछ नाम दिख रहे हैं शुगर्स के, जैसे ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, ये ग्लूकोज के दूसरे नाम है. वैसे फ्रुक्टोज इट इज द स्वीटेस्ट शुगर. तो ऐसे कुछ आपके सामने फैक्ट्स आ रहे हैं, जस्ट नोट डाउन दिस फैक्ट्स. पढ़ा नहीं सकता इतनी सारी चीजें, बट सिंपल फॉर्म से कुछ आपके जनरल नॉलेज के साथ आपको करके रखना है. राइट डाउन दिस पॉइंट्स इन प्रॉपर मैनर. ओके, एंड हियर वी आर फिनिश्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ पे आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स का डिस्कशन खत्म हुआ. एनसीईआरटी में कौन सा पॉइंट का है, मैं उसका स्पेशल लेक्चर अरेंज करूंगा. उसमें आपको मैं एनसीईआरटी रीडिंग बताऊंगा एक बार. एट दी एंड ऑफ चैप्टर आपको एनसीईआरटी का रीडिंग बता दूंगा, तब आपको समझ में आएगा चैप्टर को करना कैसे. अभी मैं जो बता रहा हूँ, जस्ट डू दैट पार्ट. एनसीईआरटी में आप ढूंढोगे तो कुछ जगह कुछ मिलेगा, कुछ पॉइंट में नहीं मिलेंगे, बट हाँ आपको एनसीईआरटी में से ही अल्टीमेटली करना. तो मैं उसका एक स्पेशल लेक्चर ले लूँ. Okay, so I'll stop here today. We'll start with proteins. Most important one here. We'll start with proteins in our next lecture.